Morning student of class 10th. Today we are going to discuss about metal and non-metal chapter, chemical properties of metal. In chemical properties, the first property is electropositivity. What is electropositivity? It is the tendency to lose electron by metal and complete their octet and attain a stable state. It means all the metal atoms lost electron. They might be lost 1, 2 or 3 electron to complete their octet and become stable and form positive charge ion, which is called cations. This property of metal is called electropositivity, and such elements are called electropositive element. So let's see how. For example, sodium Na, its electronic configuration is 2, 8 and 1. Sodium, after losing one electron, it's become Na plus 1 electron. This is what tendency of sodium, because it has 2, 8 and 1 electron in its outermost shell, and sodium required 7 more electron to attain the stable state. It means what? Every atom, every element of periodic table become stable if its outermost shell contain 8 electron. Then it is in a stable state. So according to octave theory, Lewis concept, stability based on if element is said to be stable if it has fulfilled outer orbit, and fulfilled outer orbit means it contains 8 electron in their outermost shell. So here sodium need to 7 electron. The two way to stabilize the sodium atom, if we provide 7 electron, add 7 electron to sodium atom, then it's become Na and 2, 8, 7, 8. But it is very difficult to add 7 electron. It is easy to donate 1 electron. And sodium is a metal, and metal have the tendency to release its electron and attain a stable electronic configuration, stable conditions. In the same way, let's we take another example. For example, magnesium, atomic number 12. Magnesium atomic number is 12 and it has outer configuration 2, 8, 2. What happens in case of magnesium? It is again become Mg 2 plus 2 electron. Magnesium required 6 electron to complete their octet, but it is difficult to accept 6 electron because size of magnesium is small and more energy required to add 6 electron, whereas it is easier to release 2 electron. मतलब कहने का ये है कि मैग्नीशियम जो 2 इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर दे या 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में इनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, और वो जो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट 6 इलेक्ट्रॉन, वो तो ज्यादा हो रहा है. तो इससे बेटर क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और ये क्या बन जाता है इस तरह से Mg2+. ठीक है. अगर हम बात करें एल्यूमिनियम का, एक और एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम. तो ये क्या हो गया, देखिए 2, 8 का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया. अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम का, इसमें होता है आपका 2, 8, 3. सेम केस यहां पर भी आ जाएगा, Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन. एल्यूमिनियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जितनी एनर्जी लगेगी उससे कहीं कम एनर्जी लगेगी 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में. तो एल्यूमिनियम भी क्या करता है कि जिससे आसानी से स्टेबिलिटी अटेन कर ले, तो ये भी क्या करता है अपना 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Al3+ बना लेता है, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है भाई 2, 8. और ये जो 2, 8 की बात कर रहे हैं हम, ये कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा है? अब जरा सोचिए, नियन के जैसा, Ne नियन, जो नोबल गैस है, स्टेबल है, कंप्लीट ऑक्टेट है. तो इस तरह से इनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये स्टेबिलिटी अटेन कर लिया.
तो ये है इसकी ये प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सारे क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है गाइस, कलेक्ट कीजिए कुछ मेटल सैंपल जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, रिवन, जिंक, आयरन, इन सब चीजों के बारे में। अब ये सारे सैंपल जो है एक टोंग के मदद से उसको होल्ड कीजिए और उसे बर्न करने की कोशिश कीजिए फ्लेम में। और जो बर्न होने के बाद जो बचेगा आपका, उसको क्या करना है, आपको एक कलेक्ट कर लेना है। तो आप क्या देखेंगे, जो ऐसे मेटल जो आसानी से जल जाते हैं, तो कौन कौन से मेटल है जो आसानी से बर्न हो जाते हैं, कौन से मेटल है जो कि बर्न ही नहीं हुए। और बर्न होते समय फ्लेम को भी नोटिस करना है कि कैसे वो फ्लेम हो रहे हैं। फिर इसके बाद सर अगर कोई मेटल को आपने वार्म किया, गर्म किया और वो बर्न नहीं हुआ, तो उसके सरफेस पे क्या अपीयरेंस आया, कैसे हुआ, तो आप देखेंगे उसमें। और फिर उन सबको अरेंज करना है आपको रिएक्टिविटी की, ऑक्सीजन के साथ उसके रिएक्शन कैसे हैं। तो आप जो है एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। तो टेबल में क्या करना है, ये एक सोचने वाली बात है और कैलकुलेटिव बात है। तो कैसे टेबल बनाएंगे, पहले मैं ये समझाता हूं एक्टिविटी समझने के लिए कि क्या टेबल बनाना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के बाद आपको मेटल के बारे में क्या जानना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें सबसे पहले होगा, पहला कॉलम हो जाएगा आपका मेटल का, दूसरा हो जाएगा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन से ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर उसको वाटर के साथ, रिएक्शन विद H2O यानी वाटर। फिर टाइप ऑफ रिएक्शन। इसके बाद आ जाएगा आपका कि लिटमस टेस्ट। और जो सबसे है एक अहम जो पोर्शन बच जाएगा इसमें, वो ये है कि रिएक्शन विद एसिड। इनको क्या करना है, फिर रिएक्शन विद एसिड। ये कॉलम बना करके इस तरह से टेबुलर, और आप देखेंगे तो अलग अलग मेटल के साथ में क्या रिएक्शन होता है। अब होता क्या है, मेन प्रॉब्लम हमारे साथ कि बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जिनके सैंपल अवेलेबल नहीं होंगे आपके घर में, लेकिन फिर भी मैं नाम बता देता हूं, जैसे पोटाशियम है, सोडियम है, ये सब अवेलेबल नहीं होगा आपके पास। कैल्शियम है, ये तो हो जाएगा। मैग्नीशियम है, ये भी नहीं होगा आपके पास। एल्यूमिनियम है, ये हो जाएगा। जिंक है, ये हो जाएगा। आयरन है, ये हो जाएगा। टीन है, ये हो जाएगा। फिर लेड है, पीबी, ये भी उपलब्ध नहीं हो सकता है आपके पास। फिर कॉपर है, ये उपलब्ध हो जाएगा आपके पास। तो इस तरह से कुछ मेटल का लिस्ट बना लीजिएगा आप, और फिर उसके देखिएगा कि ऑक्सीजन के पहले तो इसको एयर में छोड़ दिए तो क्या हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो क्या हो रहा है ना। फिर जो है आपका किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, कहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कहीं डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इस तरह की चीजें ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। ये तो एक छोटा सा एक्टिविटी था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज नंबर 2, पहला तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी था, और दूसरी प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन यानी और एयर, कंबशन। क्या है ये, कंबशन। कंबशन क्या होगा जरा समझिए। इसका मतलब इसे आप ये कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर या ऑक्सीजन कह लीजिए। इसी को टेस्ट करने के लिए, इस रिएक्शन को टेस्ट करने के लिए कंबशन रिएक्शन जो है हम अप्लाई करेंगे। अब जैसे मान लीजिए सोडियम है, Na है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जैसे ही छोड़ेंगे ये सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O बना लेगा और बर्न हो जाएगा एयर में ही। मैग्नीशियम है, अगर मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, MgO बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो जो रिएक्शन है फर्दर प्रोसीड होते रहेगा। हम इसको बैलेंस करना चाहे तो यहाँ 2 लगा दे, यहाँ ये ठीक है, यहाँ पर 4 लगा दे, ये भी बैलेंस हो गया।
इसके बाद जैसे कॉपर है, आप मान लीजिए Cu है, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया आपने, ये क्या बनाएगा, CuO बना देगा, कॉपर ऑक्साइड। तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी चीजों को जब आप ऑब्जर्व कर लेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है और कैसे हो रहा है। तो ये इस तरह के रिएक्शन बनाते हैं। अब यहां पर एक चीज आता है कि कौन से एलिमेंट कैसे रिएक्ट करेंगे, या रिएक्टिविटी सीरीज। तो जरा रिएक्टिविटी सीरीज क्या है समझिए। कॉपर को कितना भी हीट कर लीजिए ये बर्न नहीं होता। एल्यूमिनियम, लेड, जिंक जो है ये सब बर्न हो जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है रूम टेम्परेचर पे बर्न नहीं होगा, लेकिन जब थोड़ा हीट करेंगे तो ये बर्न होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो लैब में जो है नॉर्मल सा एक एक्सपेरिमेंट होता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्या होता है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी Mg+O2 कंबशन कराओगे फ्लेम में तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये है। अब है कि रिएक्टिविटी कैसे समझे कि कौन सा रिएक्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो रिएक्टिविटी है मेटल का, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है, उसमें क्या है कि कुछ मेटल जो है वो आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ जो है आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिएक्टिविटी जो है सीरीज लिखना चाहता हूं, यहाँ पर जरा समझिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है। ऑर्डर जैसे पोटाशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, इसके बाद आपका यहाँ पर एक और वर्ड आया कैल्शियम, लिख देते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, Pb, फिर आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम, फिर आ जाएगा आपका जिंक, फिर आ जाएगा आपका आयरन, और लास्ट में आ जाएगा आपका कॉपर। ये एक नॉर्मल सीरीज हमने यहाँ पर आपका रिएक्टिविटी सीरीज ड्रॉ किया। हालांकि ये सीरीज बड़ा है, सीरीज में कई सारी चीजें और भी ऐड होने हैं, लेकिन जैसे कॉपर के आगे की अगर मैं बात करूं सीरीज में, तो कॉपर के आगे क्या होगा मैं आपको भी बताता हूं। जैसे मैंने यहाँ कॉपर लिखा, कॉपर के बाद आ जाएगा आपका Ag, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड, ये सब। अब देखिए कि इसको जो याद करना है हमें, एक नॉर्मल सा है, एक जो सीरीज है ना रिएक्टिविटी सीरीज, ये तो हमने बना दिया है, लेकिन जब अदर सब्सटेंस से रिएक्शन की बात आ जाएगी तो ये जो Pb है ये यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा, और Pb जो है वो जिंक और फेरस, यस राइट, सही कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा चेंज करते हैं, Pb को यहाँ पुट करते हैं, और ये आ गया हमारा यहाँ पर मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद Fe, Fe के बाद Pb, और इस तरह से कॉपर। और अब देखिए इसको नॉर्मल याद करने का तरीका क्या है। ये है हमारा पोटाशियम, पोटाशियम यानी P से शुरू होता है पोटाशियम। यह है सोडियम यानी S से, ये पोटाशियम, पोटाशियम हो गया पापा, सोडियम हो गया से, कैल्शियम Mg हो गया मांगो, पापा से कैल्शियम मांगो, एल्यूमिनियम और जीत, Zn से क्या हो गया यहाँ पर आपका जीत, फिर
लो, लो मतलब हो गया आपका लेड। यहां पर एक वर्ड आता है, वो आता है हाइड्रोजन, और फिर आता है आपका CO, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कप। कहते हैं पापा से कैल्शियम मांगो, जीत लो फिर हाइड्रोजन कप, मिलेगा सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। यहां पर Mn है, एक और यहाँ सब्सटेंस आ जाता है। तो सीरीज हमने उतना बड़ा नहीं लिखा है यहाँ पर। तो क्या होता है, जीत लो फिर हाइड्रोजन कप, मिलेगा सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। एक निमोनिक्स है, फिर से सुनिए क्या है। पापा से कैल्शियम मांगो और जीत फिर लो हाइड्रोजन कप, मिलेगा सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। ये एक निमोनिक्स है जो इसमें रिएक्टिविटी याद रखने में आपको मदद करेगा। ठीक है, तो जब रिएक्शन ऑफ मेटल वाटर से करेंगे तो फिर वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगा। तो दो रिएक्शन तो यहाँ पर हो गया। अब हम इसके बाद करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, कि वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन कैसा है। ठीक है, तो कहते हैं कि मेटल रिएक्ट विद वाटर। अब वाटर से जब रिएक्ट करेगा, तीसरा प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर, तो यहाँ पर 3 कंडीशन हो जाता है। ठीक है, जरा समझिए क्या कह रहे हैं। रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ जो रिएक्शन है यहाँ 3 कंडीशन हो जाएगा, एक कोल्ड, एक हॉट और एक स्टीम। यानी कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम, ये 3 कंडीशन यहाँ पर आ जाएंगे आपके। तो क्या बनाएगा, ये जब रिएक्शन करता है, किसका बात कर रहे हैं, मेटल। मेटल जो है, जब ये वाटर है, ये तीनों कैसा फॉर्म है, वाटर का फॉर्म है। तो यानी मेटल जो है प्लस वाटर क्या बनाएगा भाई, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड यही बनाते हैं। क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस, ये बनाएंगे। या तो ये बनाएंगे या फिर ये बनाएंगे, 2 तरह के जो है प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है, कुछ मेटल जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ है हॉट से करते हैं, कुछ दोनों में से नहीं करते। तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं तो उसको स्टीम से रिएक्ट करके देखना पड़ता है। तो अब जैसे नॉर्मल रिएक्शन है, सोडियम और पोटासियम ऐसे मेटल हैं, जैसे Na है, इसको अगर वाटर से रिएक्शन कराइएगा तो क्या बन जाएगा, NaOH एक्वस प्लस H2 गैस। ये है जी पंगा। पोटासियम का रिएक्शन करा दीजिए H2O से, क्या बन जाएगा, KOH एक्वस प्लस H2 गैस। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे बैलेंस करें या क्या होगा, कैसे होगा, तो वो ये इस तरह से। अब जैसे कैल्शियम है, ये तो कोल्ड वाटर था, ये कैसा था, कोल्ड वाटर। लेकिन कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता। तो मैं यहां लिख देता हूं, कोल्ड वाटर से कौन करेगा, Na पोटासियम, हॉट वाटर से करेगा कैल्शियम। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और जो जिंक है, एल्यूमिनियम, जिंक, इस तरह के जो मेटल है ये वाटर वेपर से, स्टीम से रिएक्शन कराएंगे। आयरन है, Fe है ना, ये है। तो कंक्लूजन क्या आता है ये समझिए, सोडियम और पोटेशियम प्रोड्यूस फायर इन वाटर। मतलब कोल्ड वाटर में सोडियम और पोटेशियम को जैसे ही डालोगे तो ये क्या करेगा, फायर प्रोड्यूस करेगा, आग उत्पन्न करेगा। कैल्शियम जो है वो फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर और मेल्ट कर जाएगा। मैग्नीशियम फ्लोट करेगा 1 मिनट तक पानी के ऊपर।
कैल्शियम फ्लोट करेगा लेकिन बाद में मेल्ट हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। और मैग्नीशियम जो है वो लगभग 1 मिनट तक वाटर के ऊपर फ्लोट करते ही रहेगा। कॉपर, लेड और सिल्वर की बात करें, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये रिएक्ट नहीं करेगा। अब जो हम बात कर रहे हैं किस मेटल के बारे में कर रहे हैं, जरा फिर से सुनिएगा ध्यान से। हम कर रहे हैं इसके अलावे जो मेटल है, जरा मैं इसे साफ करूं तो समझ में आएगा आपको। कुछ मेटल है जो रिएक्शन ही नहीं करता, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं करेगा। वो कौन कौन से हैं जरा समझिए। वो है आपके लेड, पीबी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये जो मेटल है ना, ये नहीं करते रिएक्शन वाटर से, नोबल मेटल कहते हैं इसलिए इसे हम। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, की मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन कैसा, समझ में आ गया आपको। जरा देखिए कोल्ड वाटर, ये क्या करता है, प्रोड्यूस फायर। ये क्या करता है, ये तो मेल्ट हो जाता है और हॉट हीट उत्पन्न करता है। ये जो है इसका रिएक्शन अलग ही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और ऑक्साइड बनाएगा। ये क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। जरा फिर से देखिए, हॉट और कोल्ड वाटर से रिएक्शन करने पे ये क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। और ये जो है क्या बनाता है, ऑक्साइड, समझ रहे। और ये रिएक्शन नहीं करेगा। एक बार फिर से सुनिए, सोडियम पोटेशियम जो है मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम भी मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा जब वाटर से रिएक्ट करेगा। लेकिन एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो है वो ऑक्साइड बनाएगा। वहीं पर लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये जो है हॉट और कोल्ड और स्टीम किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन था। अब हम एसिड के बारे में भी बात कर रहे थे, एक बार देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड क्या है और कैसे वर्क करेगा ये। चौथी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। एसिड के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करेगा समझते हैं। क्या होता है एक्चुअली कि जब आप कोई मेटल को एसिड से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, मेटल प्लस एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। नॉर्मल एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे Na सॉलिड है, इसका HCl से रिएक्शन करा दिया एक्वस, क्या बन गया, NaCl एक्वस प्लस H2 गैस। इस तरह से इसके जगह पे कोई और भी मेटल आप ले सकते हैं, उसको एसिड से रिएक्शन करा के देख सकते हैं, तो यही होगा, हमारा हाइड्रोजन गैस बनेगा। एक स्टार देके पॉइंट लिख लीजिएगा, Cu डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपर जो है वो हमारा डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करता है। जितने भी मेटल की बात करेंगे उसमें कॉपर लिस्ट रिएक्टिव माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी हम कुछ कंक्लूजन पे आते हैं इस प्रॉपर्टी में। क्या है कि मैग्नीशियम विग्रसली रिएक्ट करता है और उसका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। तो एसिड के साथ जो रिएक्टिविटी है मेटल का, उसमें अगर बात करें तो जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है और लास्ट में क्या है आपका कॉपर। ये है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर का ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कि समराइज कर लेते हैं। अभी 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, फिर हम कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम आपको इसके बाकी की प्रॉपर्टी और रिएक्टिविटी के रीजन के साथ एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड बाय।